جو لوگ نران کا غان اور جو جناب جاتے تھے نا جناب مالن جبا اور پشاور کی سیریں کرتے تھے، زمان پارک میں مشرد عمران خان صاحب کا میلہ زندہ پیر کا سجا ہوا ہے. لوگ یہاں آ کر انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے، فیسٹیول بھی منائیں گے. یہاں بھی تو ایک ناحق جان چلی گئی نا ضلع شاہ کی. ہم جناب ان کے گھروں پہ چڑھائی کے لیے تیار ہیں. ہم نہ کوئی پاگل ہیں، نہ کوئی بھیڑ ہے، نہ کوئی بکریاں. یہ جناب 1974 والا پاکستان نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو نظریہ بتایا تھا کہ جب میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ملک کے غداروں کے خلاف ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے پی ڈی ایم کی شکل میں، فضل الرحمان ڈیزل کی شکل میں اور زرداری 10% کی شکل میں اور نواز شریف ڈاکو کی شکل میں جو سعودی عرب آگے اس کی کلچ پلیٹیں گر گئی ہیں. اب مذاکرات تو خان صاحب انہی سے کرنے لگے ہیں نا جن کو گالیاں دے رہے ہیں، جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ سے مذاکرات ہونے لگے ہیں آپ کے. لنگڑیال کہاں گیا، جہانگیر ترین کہاں گیا، علیم خان کہاں گیا، سما ٹی وی کو خرید پر بھی خان صاحب پر چکر اچھال سکا، اون چودھری کہاں گیا. یہ سب لوٹے شوٹے بھاگ جائیں گے اور یہاں رہے گا جناب امت مسلمہ کا عظیم لیڈر عمران خان صاحب. ایک کیمپ میں موجود ہیں زمان پارک، ادھر آئے ہوئے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں پردیسی، وہاں پہ جب یہ چارجر کا کوئی مل جائے انتظام تب جو ہے یہ غنیمت ہوتی ہے. چارجنگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا بھی نہیں ہے، گرمی نہیں لگ رہی. بھائی جان سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی گرمی میں اتنے آپ کو پسینے آئے ہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں. تو دوسری بات یہ گرمی بہت زیادہ ہے. عمران خان مرشد جو ہے ہمارے ہیں نا جناب، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، ہمارے مرشد پاک جو ہیں، اس کا جناب زندہ پیر کا یہ میلہ لگا ہوا ہے اور لوگ یہاں دور دور سے، میں ضلع حافظ آباد سے ہوں، پشاور سے، کوئٹہ سے، بہاولپور سے اور جناب پورے پاکستان یہاں موجود ہے. ہم انصاف ٹائگر فورس کے ماشاءاللہ جوان ہیں اور یہ سب جو ہے نا ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2014 سے لے کر آج تک کھڑے ہیں، جو کہ دھرنے میں بھی جناب ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں. سندھ صدیق کمانڈر ہے اور رشید بھائی ہیں جناب، شوکت بٹ ہے، عثمان بھائی ہے اور بابا جی ہے اور میں خود ماشاءاللہ. ٹھنڈا ہو گیا ہے باہر بڑا. بھائی جان ہم یہاں موجود ہیں، ٹھنڈا کوئی نہیں ہوا جناب. آج ماشاءاللہ 80 میں روزہ تھا، ساری رات بھی جاگے ہیں، سارا دن 36 گھنٹے ماشاءاللہ ہم جاگتے ہو گئے. ان میں سے اللہ گواہ 1 گھنٹہ ہم سوئے ہیں. آج پھر ماشاءاللہ ابھی ڈیوٹی جاری ہے تو کوئی ٹھنڈا نہیں ہوا. دیکھنا ماشاءاللہ یا فیسٹیول جاری ہے. جو لوگ نران کا غان اور جو جناب جاتے تھے نا جناب مالن جبا اور پشاور کی سیریں کرتے تھے، زمان پارک میں مشرد عمران خان صاحب کا میلہ زندہ پیر کا سجا ہوا ہے. لوگ یہاں آ کر انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے، فیسٹیول بھی منائیں گے. یہ بڑا میں سننے کو جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ زندہ پیر کا میلہ ہے. یہ تو بڑا ایک ایسے جیسے ایونٹ بنا ہوا ہے، لیکن یہ خان صاحب نے مذاکرات کی طرف چلے گئے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا لگتا ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے؟ میں عمران خان صاحب کو سلوٹ پوش کرتا ہوں سرخ کہ وہ جناب ابھی تک اپنی بات پر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی بات سے انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. وہ ہمارے لیے اگر یو ٹرن کو لیتے ہیں اس کو جناب جو ہے نا جی آپ اچھا اعزاز کی بات سمجھے، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کی بات کرتے ہیں. جتنی عوام عمران خان صاحب کی ساتھ کھڑی ہے اور جو انہوں نے ہمیں کو روکا ہوا ہے، ہم جناب ان کے گھروں پہ چڑھائی کے لیے تیار ہیں. ہم نہ کوئی پاگل ہیں، نہ کوئی بھیڑ ہے، نہ کوئی بکریاں. یہ جناب 1974 والا پاکستان نہیں ہے، اب 2023 ہے. بھائی جان آپ بھی ماشاءاللہ یہ ٹی وی چینل اپنا ساتھ لے کر پھر رہے ہیں. میرے ہاتھ میں جناب یہ جو ٹی وی ہے نا یہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جاتا ہے اور عظیم لیڈر امت مسلمہ کے عظیم لیڈر نے ہمارے جناب منہ میں زبانیں ڈال دی ہیں جو کہ جناب ہمیں کوئی چیز کا نہیں. ہم بدھو لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، 10 والے جاہل لوگ تھے نا جی. تو دیکھو انہوں نے بتا دیا معیشت کیا چیز ہے جناب، اور جناب ڈی ایچ کیو کیوں کہاں ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے نا جو اس نے دیکھ لیا، ان کے کچھے بھی اتر گئے ہیں. اور میں چیف جسٹس صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بالکل اس کی ماں باپ نے اس کی ماں نے جنا ہے 9 مہینے 9 دن 9 گھنٹے 9 سیکنڈ کے بعد، کیونکہ اس نے حق کا فیصلہ کیا. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے جانا آرٹیکل 5 اور 6 کے گڑوں میں فٹ ہوگا. اور انشاءاللہ جو الیکشن کی تاریخ دی، اب تو یہ جو ہے جی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کوئی حکومت یہاں نہیں ہے، یہ جناب اللہ کی آس پہ چل رہا ہے، نیوٹرل کے سسٹم پہ. جب 90 دن کے لیے ایک نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے جناب الیکشن کرانا، کہ نہ کہ جناب ہم پر شیلنگ، ہم پر جناب ظلم. ہم جیل میں ماشاءاللہ رہ کر رہے ہیں 20 دن اور ہمارے جو بت تھے نا خوف کے وہ ہم نے توڑ دیے ہیں. اچھا یہ جو ابھی میں جس طرح آ رہا ہوں آپ کے پاس کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ایک جان بھی گئی، اتنا یہاں پہ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، اتنے لوگ زخمی بھی ہوئے، یہ پہلے کر لیتے خان صاحب؟ اتنے پریشر کے بعد اب آ کے مذاکرات کی طرف، یہ ناانصافی نہیں؟ بھائی جان میں یہ بتا رہا ہوں پاکستان میں ابھی تک کوئی اب عین اور قانون ختم ہو چکا ہے. عین اور قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونی ہے. نہ یہ وزیر اعلیٰ اور کرائم منسٹر 14 ارب روپے کا سرٹیفکیٹ چور ہے. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اگر خان صاحب نے ہمیں کال دی تو ہم تو سڑکوں پر ہوں گے. پاکستان کی میچ، پاکستان تو فلاپ ہو چکا ہے، اس وقت کی وہ جھوٹ ہے، کوئی آپ ماننے کو تیار نہیں. پاکستان ختم ہو چکا ہے. خواجہ صاحب اپنی زبان سے کہہ چکے کہ پاکستان فلاپ ہو چکا ہے. تو یہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. 10 مہینے بعد حساب لگائیں 150 روپے کا ڈیزل لیٹر تھا کہ نہیں تھا، پیٹرول لیٹر تھا کہ نہیں
تھا آج 292 रुपए में लीटर खरीद रहे हैं। क्या हमको पागल हैं? हम अपने मुंह से खाते हैं, अपने नाक से सांस लेते हैं, अपने कान से सुनते हैं। साहब भी जब महंगा करते थे वो कहते थे आलमी मंडी में महंगा है। ना ना ना, कोविड के बावजूद इमरान खान साहब ने जनाब एक दफ़ा भी माशाल्लाह कोई इतना बड़ा पैकेज नहीं लाया जो मजबूरी थी 2 रुपए 3 रुपए, वो ऐसा ऐसा थोड़ा जा ऊपर उन्होंने लाया। वहाँ पेट्रोल जो डीजल पेट्रोल था आलमी मार्केट में महंगा था कोविड की वजह से। अभी भी महंगा हो सकता है ना भाईजान, अब जनाब हम जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं है ना कोई, हम जनाब 36-38 घंटे जो जाग रहे हैं तो क्या पागल हैं? ये जो हमारे पास हर चीज़ है ये बता रहा है हमें कि पाकिस्तान जो है ना जी उसकी मैशत भी गिर चुकी है और आज जो है ना जी इन्होंने मुल्क को बिल्कुल तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है। ये ड्यूटी जो कर रहे हैं इसका कोई मुआवजा है? अल्लाह गवाह है, खुदा गवाह है, 8 बच्चों का मैं बाप हूँ और मैं सुलेमान खेल कबैल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का सदर हूँ और पश्तून नेशनल पीपल मूवमेंट पंजाब का सीनियर नायब सदर हूँ और PP 71 से साबका टिकट होल्डर हूँ। 2018 में मैंने तरीके लब्बैक को छोड़ा था और PTI को ज्वाइन किया था इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक। तो अल्लाह गवाह, इमरान खान साहब ने जो नज़रिया बताया था कि जब मैं चोरूँ, डाकुओं, लुटेरों और मुल्क के गद्दारों के खिलाफ हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है PDM की शक्ल में, फजल रहमान डीजल की शक्ल में और जरदारी 10% की शक्ल में और नवाज शरीफ डाकू की शक्ल में जो सऊदी अरब आगे उसकी क्लच प्लेटें गिर गई हैं और उसकी बेटी 420 नानी के जनाजे से इतने उसके नाखन बड़े उम्रा करने गई है। दीन इस्लाम में है ये ना क्या करें। खुदा गवाह, देख के दीन की बात अगर आप TV पर आकर नहीं कहेंगे, क्या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलोंग नहीं करते? नहीं, अखलाकियात भी कुछ होती हैं। माशाल्लाह अखलाकियात ये है कि दीन के बारे में अपने जनाब जो है ना डाकुओं और चोरों लुटेरों को बताना चाहिए कि नाखन काट कर आप उम्र हज के लिए जा सकते हैं। वो अल्लाह उनका मामला। ना ना ना, अल्लाह इसका मतलब है फिर आप जनाब यहाँ कोई नंगा आदमी फिर रहा है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे सलवार पहन लें, ये अल्लाह और उसका मामला है। वो तो जनाब आप जो दिल जी चाहे करें, फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है ना। फिर उसके महरम मौजूद है ना जनाब महरम जनाब अल्लाह वास्ते अड़ी गल है जनाब, झटकी तन गल पापा के साथ गई हुई हैं अपनी। ओ जनाब पापा आ गया है, आप पापा पहुंच गए जनाब सऊदी अरब और आगे प्लेट के लिए क्लच प्लेटें जो गिरी हुई थी वो अब जनाब ऊपर होनी है। सऊदी अरब से लंदन जाएगा, डाकू यहाँ नहीं आया क्योंकि इश्तिहारी है 50 रुपए के स्टाम्प पर जो ये क्राइम मिनिस्टर है इसने उसकी ज़मानत दी हुई है। क्या तुम अपने भाई के 50 रुपए के स्टाम्प पर अगर ज़मानत दी हुई है तो पाकिस्तान की अदालतें रिलीफ देती हैं और वो ऐसे भागा जाता है, वहाँ से जनाब पाकिस्तान को चलाने की कोशिश। साहब ने क्यों जाने दिया फिर? खान साहब को इन्होंने बताया और कसम और कुरान खान साहब तो कहते थे मैं जेलों में डालूंगा। जेलों में डाला, ट्रायल करना है अदालतों ने और जनाब ये सब हाथ था जनाब, कमर जो बाजवा के हाथ में सब कुछ था। उसने उस टाइम खान साहब बता देते कौम को। जी खान साहब ने बताया था, आपको समझ नहीं आ रही। फिर खान साहब ने बताया था कि NRO जोर से लिया जा रहा है तो हम लोग और आप लोग हंसते थे और आपकी मीडिया वाले बता रहे थे। टेंशन खान साहब नहीं दी थी ना बात सुने, जब मीडिया वाले बता रहे थे वो बता रहे थे कि जोर से NRO लिया जा रहा था जनाब, तो वो हमें अशारों में बता रहे थे, हम जनाब फुल समझे नहीं, आपको पता चल चुका था। और जैसी हुकूमत गिराई गई ये बताएं क्या अब जनाब महंगाई नहीं है? कहाँ गया महंगाई महाराज, कहाँ गया बिलो रानी वाला महाराज, कहाँ गया जनाब वो हमारे लोटे जो लोटे हो गए? क्या ये बताएं अपोजिशन लीडर राजा रियाज जैसा आदमी हो जो हमारा PTI का कैंडिडेट और नून लीग का टिकट होल्डर बनने के लिए वो अपोजिशन लीडर बनने के काबिल है? नहीं, अब मुज़ाकरात तो खान साहब उन्हीं से करने लगे हैं ना जिनको गालियां दे रहे हैं, जिनको बुरा भला कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग से मुज़ाकरात होने लगे हैं आपके। भाईजान हमने मुज़ाकरात के दरवाजे खान साहब ने कभी भी बंद नहीं किया क्योंकि वो लीगल बात जो होगी पाकिस्तान की जो बात होगी उसके लिए मुज़ाकरात हमारे जारी हैं और हम करेंगे। ये तो देखें ना जी पाकिस्तान की बात है, ये कोई जनाब कोई ज़ाती बात तो नहीं किसी वो भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। जो उन्होंने पाकिस्तान को जनाब जुल्म और इंतहा के साथ जिस दाने पे तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया, मैशत कहाँ चली गई है? 7% ग्रोथ पे जनाब जो है ना पाकिस्तान उड़ रहा था। खान साहब के दौर में भी तो महंगाई थी भाईजान। 150 रुपये लीटर पेट्रोल मुझे डाल दें जनाब, 170 ले लें हम आप मुझसे, 292 रुपये तो ना करें। और जनाब जो है ना जी आटा मिल रहा था जनाब 2018-1600 में, आप जनाब 4400 रुपये का मैं खुद आटा खरीद कर आया हूँ खुदा की कसम, चक्की वाला। तो आगे बताएं जनाब इससे का। और 600 रुपये पे घी खरीद रहा हूँ, 300 तकरीबन 350 या 60 रुपये खान साहब की हुकूमत में हम खुद ही खरीद कर बच्चों को खिलाते हैं। और जनाब इनकी तरह जनाब नात को जनाब इनके जनाब जो है ना सड़कों की अब क्या करें? खान साहब को हुकूमत दोबारा दे देंगे, खान साहब ने फिर आके ही कहना है मेरे हाथ बंधे हुए थे, फिर क्या करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान साहब को हमने 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म में नहीं लेकर आना, हम इंशाल्लाह 20 साल के लिए इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएंगे। जो आर्मी चीफ लगा दें, ऐसे तो नहीं आएंगे 20 साल के लिए इंशाल्लाह जनाब। आपको ये बात मैं बताता चलूँ वाज़ेह, 20 साल के लिए इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे और आर्मी चीफ अपनी लाइन पर रहेगा, चीफ जस्टिस अपने अदारे में रहेगा। और जनाब भाई कैसे लेके आएंगे 20 साल के? इंशाल्लाह 20 साल के लिए तरायद है सीरत से आएंगे। और इसके बाद ये ख़त्म हो चुकी है ना, इनकी शक्लें कोई देखने को करते पसंद ही नहीं करता। जब बाहर निकलते हैं आपने देखा है PTI का एक लोटा हुआ है आज़ाद
कश्मीर है, उसको जूते ने मारा है। रिक्शे वाला एक आदमी था, उसको टिकट दी, खान साहब ने वो जीत कर आ गया, वो लोटा हुआ तो लोगों ने उसका सिर फाड़ दिया है। आप इनके घरों तक जाएंगे, लंगड़ियाल कहाँ गया, जहांगीर तरीन कहाँ गया, अलीम खान कहाँ गया, समा टीवी को खरीद पर भी खान साहब पर चिकड़ उछाल सका, ओन चौधरी कहाँ गया, ये सब लोटे छोटे भाग जाएंगे और यहाँ रहेगा जनाब उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर इमरान खान साहब। और उसके साथ अलीम खान कहते थे मनाजरा कर लें खान साहब मेरे साथ बैठ के, खान साहब गए नहीं। वो बेशरम आदमी, अगर तेरी 4000 एकड़ जो है वो सरकारी खाते से पास करा देता तो फिर मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान साहब अब तक उसका बाप था जब तक समा टीवी उसने नहीं ख़रीदा, और वो 4000 का उसने जवाब दिया। खान साहब ने वज़ीर आला नहीं बनाया, हमें क्या बेवकूफ़ समझा? खान साहब की ATM कहा करते थे उन्हें तो लोग। भाईजान अब बताएं, अब कौन ATM है? अब मैं भी ATM हूँ, ये भी ATM, ये भी ATM, ये सब ATM खड़े हैं जनाब। ATM मुकम्मल मौजूद है, क्योंकि हर लोग अपने पास से पैसा लगाती हैं और ख़ान साहब से प्यार करती हैं। ये बातें आप यहाँ हमारे पास आए हैं, देखें ना माशाल्लाह, अगर ये लोगों को आप बातें बता रहे हैं ना, आपका टीवी चैनल चल रहा है, किस बात पे टीवी चैनल चल रहा है मुझे बताएं। जियो कहा गया जो रोज़ कहता था जनाब इतनी महंगाई हो गई है जनाब आसमान को छू रही है, कहाँ गया जनाब समा, कहाँ गया जनाब वो कह रहे दूसरे हैं, सारे कह रहे हैं। जनाब। अभी जो है ना 2-3 टीवी ने हमारी बात बुलंद की, ये बोल के साथ कितना जुल्म हो रहा है। आटे का मसला बना हुआ है, सारे वो दुनिया जनाब अल्लाह का नाम है, 20 लोगों को तो आपने शहीद करवा दिया, ज़ालिमों आटा फ्री में दिया है जनाब, 5 करोड़ का और गिना रहे हैं 17 रुपए का फराडियों का यहाँ हो चुका है, और ये 10% और 20% जो यहाँ भी तो एक नाहक जान चली गई ना जिले शाह की। जनाब कितना बड़ा जुल्म हमारा वो भाई था जिले शाह को जनाब, हमारे जनाब हम पे हमला किया गया। हमको कश्मीर है, हमको फ़लस्तीन है, हमको जनाब जो है ना जी इंडिया है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी कार्ड नहीं है, हम जनाब हम दहशत गर्द हैं, हमें मेरे ऊपर दहशत गर्दी का FIR दी गई है और टीवी पर दिखाया गया कि कलदम तंजीम से अल्लाह के बताए। खान साहब ने मायदा कर लिया पंजाब हुकूमत से कि वो बंदे हम प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पे पुलिस को जो है वो इश्तिहाल दिला रहे थे, वो आपको पता है? इंशाल्लाह इमरान खान साहब की जब हुकूमत आएगी तो ये सब जो जनाब जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, एक एक कैमरे के आके उनको महफूज किया हुआ, हम इंशाल्लाह एक एक घर के पीछे जाएंगे और उनको सजाएं दिलाएंगे। किसी को माफ़ी की तवक्को कोई ना रखे, इंशाल्लाह नाम माफ़ी देंगे। चलें, अब खान साहब कह देते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं जी जी और आप लोग जो हैं वो यहाँ से चले जाएँ, जी, फिर क्या करेंगे? यकीन करेंगे खान साहब की बात पे? इंशाल्लाह वो जनाब अभी हमें कहेंगे कि अभी चले जाएं, वो कल कहेंगे कल जाएंगे, साल बाद कहें साल बाद जाएंगे, 10 साल बाद कहें ईमान कुरान से 10 साल बाद जाएंगे। ईद यहाँ गुजार रहे हैं, बताएं मेरे 8 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं साथ लेकर आया हूँ। क्या को हम पागल हैं? मैं एक पागल हूँ, 24 करोड़ आवाम तो नहीं ना पागल भाईजान जो यहाँ आती है। और यहाँ जनाब जिंदा पीर का मेला लगा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही। यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं तो उनका ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है, सैसा गुजरती हैं दरबार से, क्योंकि उनको पता है यहाँ जिंदा पीर का लंगर चल रहा है, रोज़े खुल रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, मस्जिद तमीर ये है। भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो PP के लिए आए हुए हैं तमाम MPs MNAs अपनी टिकटों के लिए आए हुए हैं, जो जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था उस दिन ही नज़र आए, जिस दिन कोई हंगामा आ रही होती है उस दिन ही नज़र आए, आप लोग सिर्फ टिकटों के लिए बैठे हैं। PP खतर से मैं सबका टिकट लूटता हूँ, मैंने ख्वाहिश ही छोड़ दी है। मैं जनाब यहाँ आकर बैठ गया हूँ इंसाफ डगर फोर्स के साथ, हिसाब लगा लें, क्योंकि खान साहब जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ खड़े हैं, वो चाहे जनाब खंबे को देंगे ना, वो इसलिए बताना हूँ खान साहब खंबे को देंगे नहीं। वो जैसा आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं ना जनाब, वो हर आदमी से 10-15 मिनट इंटरव्यू करता है और उसका जनाब हर चीज़ उसके खाता पहुँच जाता है। आप जनाब क्या कर रहे हैं, आपका क्या कारोबार है, आप चोरी कर रहे हैं, आप डकैत हैं। आपका हुआ इंटरव्यू? मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं, खान साहब मेरे दिल में है। मैंने ये कहा कि मैंने ख्वाहिश ही छोड़ दी है। इंशाल्लाह ईमान से चोरों डाकुओं लुटेरों को तस्लीम नहीं करेंगे, और खान साहब के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं, अपनी जान दे देंगे इंशाल्लाह। बच्चे पीछे देख रहे हैं, सो रहे हैं, गर्मी है, इसका क्या इंतज़ाम करेंगे? ये माशाल्लाह अब जनाब बच्चे जनाब जो सो रहे हैं पीछे, बड़े यहाँ बैठे हैं, यहाँ पंखे माशाल्लाह आ जाएंगे, उनको लगाएंगे और फिर पंखे में बैठेंगे। जब माशाल्लाह हम पर जुल्म करेंगे, हमसे अपने सीने लेकर खड़े हैं, आगे भी जेल गए हैं, फिर जाएंगे, ये शैल करें, गोलियाँ मारे हम पर जनाब, जो रिफ्यूज़ जो है ना ख़त्म शैल है वो हम पर इस्तेमाल किए। हमारी आँखें देखें ये लाल उस दिन से हैं, हम अपना जिस्म दिखाएं तो इन्होंने जो हमारे पर जुल्म किया, हमें जनाब हमारा खान साहब का गेट, पाकिस्तान के गेट को उन्होंने तोड़ा है। ये जो खान साहब का गेट है या जनाब इजराइल इंडिया, इसको जनाब ये सब PDM भी ख़त्म हो जाती है, ये पाकिस्तान का गेट उन्होंने तोड़ा है। तो इस बात के भी हिसाब होंगे, इन लोगों के गेट भी टूटेंगे। ज़मान पार्क से जो जनाब गेट जो हमारा उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर का टूटा है जनाब बिलावल का और मरियम का, जनाब जाती उम्रा भी कहीं नहीं जाएगा और बकाया लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चोर हैं। और इमरान खान साहब तो एक अजीम लीडर है ना, उसके साहब को अगर वो करप्शन का केस होता तो 11 माह से कोई निकल आता जनाब, इश्तिहारी है खान साहब। आप लोग उनकी वतनी पे क्यों इतना शक करते हैं? पाकिस्तान के लिए काम कर तो रहे हैं, वो हुकूमत चला रहे हैं, गरीबों में भी आटा तकसीम कर देते हैं, चले कोई तो मान लें उनकी, कोई तो एक तो उनकी कामयाबी माने। अल्लाह गवाह, जब हम इनको देखते हैं तो उनकी शक्लें हमें
जैसी लगती हैं, आप नाराज़ ना हो। ये जालिम लोग जो है ना, इन्होंने 30, 35, 40 साल से हमारे मुल्क को जो लूटा है, और हमारे मुल्क को 35 साल में नाली बन रही है, सड़क बन रहा है, सुड़क बन रहा है। हमें ये भी बताया जाए जनाब 35 साल से मेरा तलीम का म्यार क्या था। मेरा जनाब जो स्कूल के नाम पर जनाब फ़ंड लिए जा रहे हैं, जो स्कूल के जनाब जो सेहत के नाम पर मेरे घर के सामने अस्पताल है PP 71 में 40 आपको एटमी ताकत नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, सबसे बड़ी बात। खुदा का नाम माने जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूसुफ जई पश्तून ने जनाब पाकिस्तान को हुकूमत होने की थी। बात सुने ना, हुकूमत को। अब जब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम जो है ना जी, ये इस्टेब्लिशमेंट हर प्रोग्राम लेके आती है। अब जो भुट्टो था ना, भुट्टो ने ये कोशिश की और डॉक्टर कदीर खान पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। उसने कितने डॉक्टर कदीर खान को बना दिए। जब वो इस दुनिया फ़ानी से गए तो उनको कितनी इज़्ज़त दी गई, मुझे ये बताएं। हमारे जो हीरो हैं इमरान खान साहब भी माशाल्लाह ऐसे ही हीरो पाकिस्तान को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक मिले हैं, कह रहे हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को आज़ाद किया था। और इमरान खान साहब जो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, कानून रिफॉर्म करेंगे, अदलिया, फ़ौज और पुलिस को इंशाल्लाह हुकूमत दी तो थी, उन्हें क्या किया फिर उन्होंने? 3.5 साल में आप रोना पिटना सुने जनाब। 10 लाख का सेहत कार्ड और जनाब नंगर खाने, और जनाब सेहत कार्ड के बाद जनाब 20 लाख नौजवान प्रोग्राम, और जनाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हकूक़ दिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मुनार बुलंद किया, कश्मीर का जनाब इशू उठाया। और आखिरी बात नहीं है, पहली बात है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना खातमुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम का जो उन्होंने अंग्रेज़ के अमानों में जनाब प्रचार किया, और उन्होंने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आप गलीज़ ज़बान बकवासात करते हैं, मुसलमान के दिल में दर्द होता है। तो मुसलमान के दिल में जब दर्द होता है तो दिल का दर्द पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की, कश्मीर की आवाज़ बने, जनाब फ़लस्तीन की आवाज़ बने, और पूरे उम्मत मुस्लिमा की उन्होंने आवाज़ उठाई है। चलें अब बता दें, अब क्या कहते हैं, खान साहब को मज़ीद 5 साल दे दें, कर देंगे सही? 20 साल के लिए इमरान खान 20 साल नहीं मिलने, ईमानदारी की 20 साल कैसे ले? डंडे के जोर पे आएंगे इस 5 खान साल साहब आर्मी चीफ हैं, 20 साल कैसे? आर्मी चीफ की क्या औकात है जनाब। यहाँ खान साहब हमारे दिलों 20 साल कैसे? 5 साल के बाद फिर लाएंगे जनाब। आवाम लाएगी, आवाम ने उनने जो 5 साल आने उन्होंने इंशाल्लाह ऐसे काम कर देंगे जो 7 पे करोड़ थी ना, अब सिर्फ पाकिस्तानी आएगी। खान साहब आर्मी चीफ से तनाज़ात रखते हैं, 20 साल के लिए कैसे आएंगे? शेख रशीद साहब अभी कह रहे हैं कि हमारी सुलह हो जाए। पहले भाई ने बड़ी ज़बरदस्त आपको आर्गूमेंट्स दी। देखिए हमारा कोई आर्मी चीफ से कोई ज़ाती मसला तो नहीं है ना PTI का। देखिए मेरी बात सुने गौर से, मसला पता है क्या है? पाकिस्तान ठीक करने का। इमरान खान ने कहा जब मैं चोरों के ऊपर हाथ डालूंगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है? तो जितने चोर है, देखिए वर्दी वाले हमारे भाई है, वो आर्मी हमारा एक ऑनरेबल इदारा है, ठीक है? उसके अंदर जो साम्राज्य क़ुव्वतों के फले हुए लोग हैं जिन्होंने आर्मी को भी यरगमाल किया हुआ है, उनका एहतिसाब होगा इंशाअल्लाह। और ऐसे नहीं है आर्मी चीफ सरकारी नौकर है, वो मुलाजिम है, और ये अवाम है, अवाम ताहयात है, और वो इदारों का कोई पता नहीं चलता। हो सकता है कल इदारों के अंदर चेंजेस आ जाए, सारी चीज़ें देखे आने वाले शेख साहब क्यों कह रहे हैं ये कि हमारी सुलह हो जाए? देखो शेख रशीद क्लैशेस से, देखिए वो हमारा PTI का तो नहीं है, उसका अपना ज़ाती बयान है, ठीक है? उसके खान साहब के साथ रहते हैं, देखिए वो हमारे साथ बेशक है, बड़ा हमारे लिए काबिल एहतराम है, और उनकी हर बात पक्की। आप कहते हैं इख्तलाफात नहीं थे? कुछ भी नहीं हमारे क्या। अभी जाती आर्मी चीफ के जो मौजूदा चीफ हैं उनके बारे में भी खान साहब ने कहा था कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो करवा रहे हैं आर्मी चीफ करवा रहे हैं। जनरल कमर जो बाजवा साहब की, ये भी रिसेंटली जो है ये भी वही लेके चल रहे हैं। हम कहते हैं कि रिफॉर्म करें पाकिस्तान की आवाम। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो सुन लें। अभी मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी खान साहब ने कहा था कि जो करवा रहे हैं ये चीफ साहब करवा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए वो सरबराही तमाम इदारों का है ना, अकेले आर्मी चीफ तो नहीं है, 3 मुसल्लह अफवाज का सरबराह है, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह है ना। उनके गलत कामों के साथ हमारा बिल्कुल इख्तिलाफ। गलत कर दिया यार, सिपा सला रहे हैं आपके वो क्या वो उसने देखे वो गलत उनके जो है उनके साथ हमारा इख्तिलाफ है, वो हम समझते हैं, हम कहते तो नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर ये अभी जो मतलब कि आईनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, क्या पाकिस्तान के आइन को ये लोग नहीं मानते? इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इदारों ने करनी है ना। देखिए हुकूमत वहाँ डटा हुआ है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, किसने ला के बिठाया है? उसके साथ तो मेजॉरिटी ही नहीं है। आप समझते नहीं है गलत काम कौन करवा रहा है? अदम एतमाद पहली दफ़ा कामयाब हुई है ये अदम एतमाद। देखिए मेरी बात सुने, ये अदम एतमाद था ही नहीं था, ये तो एक साजिश थी, एक साइफर आया अमेरिका से। चले भाई प्रोग्राम लंबा हो रहा है, आखिर में बता दें चाहते क्या हैं अब आप लोग? हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम आज़ाद हो, पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, पाकिस्तान के इदारे खुद मुख्तार हो। पाकिस्तान वो कैसे होगा? वो
इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। पावे जिसका भी हुकूमत आ जाए, आज़ाद आ जाए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक और ये इमरान, देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन से ये क्यों भाग रहे, आके मैदान में इलेक्शन लड़े, 2/3 मेजॉरिटी पे हुआ जो वो फैसले करे, अगर हम आगे तो हम बिल्कुल ठीक है जी। एजुकेटेड लोग थे, इनसे बात करने का भी इसलिए मज़ा आ रहा था, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं, बात रह गया है। आखिरी जल्दी देखिए पता है मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ किया था, अगर हम 2/3 मेजॉरिटी में आ गए तो हम देखेंगे, हो सकता है कि हम माफ़ी चोरों को नहीं माफ किया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारी बेटी भी अगर चोरी करे तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, इनको नहीं माफ करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जी। ये गुफ्तगू आपने सुनी है, यहाँ पीटीआई के वर्कर्स बैठे हुए थे, कैंप में हम आए हैं और इनसे कोशिश की है लंबी डिबेट करें, कन्वर्सेशन क्रॉस कन्वर्सेशन करें, इसीलिए कि इनको भी देखने का मौका मिले, जानने का मौका मिले कि ये जो ग्राउंड रूट पे लोग बैठे हैं इनको कितना नॉलेज है खान साहब के वाले से।